Welcome to my channel BioHealth Academy. I am Kiran Sharma from Punjab, lecturer biology. So on this channel you will find lectures of biology for classes 11th and 12th. Because I am public health professional, also I am qualified MPH. So therefore I will upload few public health awareness lectures also on this channel. But mainly this channel is for classes 11th and 12th biology lectures, right? So now as you can see on this board, the it is now today our class is for 12th standard. So unit second we are taking genetics and evolution. So this is the very important unit for your annual examination as well as for your NEET examination. So as far as annual examination is concerned, so CBSE as well as Punjab School Education Board students, so they will have 18 marks questions from this unit, right? So now, so therefore this is the maximum marks a unit is assigned. So 18 marks, right? So now there will be the 2 chapters of genetics and 1 chapter of evolution. Total 3 chapters. So chapter number 5, principles of inheritance and variations. So 5 marks. And then chapter number 6, molecular basis of inheritance. So from this chapter you will get have questions of 10 marks in total. And from the evolution chapter number 7, so you will have 3 marks. Now in detail the marks distribution will be this chapter, 5th chapter, so we'll be having 1 2 marks question and 1 3 marks question. In total there are 5 marks. Then from the 6th chapter, so there will be 1 2 marks question, 1 3 marks question and 1 5 marks question. So this 5 mark question, so in every board will have the internal choice. So then another question for internal choice will be from evolution. So therefore we have counted 5 marks in this unit, not in this unit. So then so it is 5 marks from this, and or in the form of or it will be so from the evolution also. In this evolution, so you will get 1 3 marks question also. So rather you will have 2 questions in the form of or. मतलब कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसका जो और में आएगा क्वेश्चन वो भी इसी चैप्टर में से होगा. तो देयरफॉर सो 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन. तो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. मैं हर वीडियो में सो जो भी यूनिट शुरू करूँगी तो उसके सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका थोड़ा सा सिलेबस जो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी हर चैप्टर के लिए. तो नीट के लिए अब ये यूनिट जो है कैसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस असाइंड है नीट में, 45 इन द बॉटनी एंड 45 इन द जोलॉजी. तो आउट ऑफ दिस 90 क्वेश्चंस, सो अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस यूनिट. So this is a big number. So all मतलब 25 to 25 questions out of the 90 out of the whole syllabus. So you will so have so 24 questions from this unit. Now you can find out कि why this unit is so important. So there will be 12 to 13 questions from in the botany and 12 to 13 questions in the zoology, right? So दोनों जो आपके पार्ट्स होंगे नीट के, तो उसमें दोनों में ही जेनेटिक्स आएगी. ठीक है, बॉटनी में भी आएगी, जोलॉजी में भी आएगी. 10-12 क्वेश्चंस जो है बॉटनी में होंगे, 10-12 ही क्वेश्चंस जो है जोलॉजी में होंगे. तो मिला के 20 से लेके 25 तक क्वेश्चंस जो है वो इस यूनिट से आ जाते हैं. तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिट को थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं. ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं है. सो ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, और हम लोग इसको और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे. ठीक है, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो जेनेटिक्स में ही है. तो और इसलिए इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें स्टैट्स है. ये बहुत ही सिक्योरिंग यूनिट है. तो इसमें आप एनुअल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे मार्क्स ले सकते हो और नीट में तो ले ही सकते हो आप. तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से हम लोग करेंगे. आप सारी मेरी वीडियोस जो है वो अच्छे ढंग से देखना. मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी सारी वीडियोस जो हैं. अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग ज़्यादा सिस्टम नहीं अपना बना पाए हैं. तो मैं ये पहली बार ही है कि ये सारी वीडियोस जो है वो अपलोड ऐसे करूँगी. तो थोड़ी बहुत कमी रह जाए किसी चीज़ में तो वो मुझे आप सो उसमें क्वेश्चंस जो है नीचे आप लिख के बताना. तो आगे से फिर वो उस कमी को मैं दूर करूँगी. और सो ये वीडियो जो है इनको सो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना.
ठीक है, तभी जो है वो मुझे भी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो मैं और वीडियोस जो है आपको अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अब चलते हैं कि चैप्टर 5 जो है, ठीक है, उसमें जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बोलते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सिलेबस है उसमें, तो थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन। ये वीडियो मैं सिलेबस के साथ ही एंड कर दूंगी, आगे जो इस चैप्टर की डिटेल्स है वो अगले वीडियो में अपलोड करूंगी ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। तो अब है मेंडलिज्म। ठीक है, उसके इसमें हम ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी काम किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कि डेविएशंस फ्रॉम द मेंडलिज्म। आपकी जो सिलेबस है उसमें आपके लिखा हुआ है, आप इसका जो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका आप जब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पे जाओगे, जहाँ आप सीबीएसई की साइट पे जाओगे, तो वहाँ पे सिलेबस है, तो उसको आप डाउनलोड कर लो, उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख लो अपने पास। तो जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप उसको जरूर अपने पास रखो कि क्या हमारा कवर हो गया और क्या हमारा रहता है, तो आप उसको टिक करते जाओगे कि हाँ ये हो गया हमारा, और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना इनके। तो इसको नॉन मेंडलिज्म भी कहते हैं हम, डेविएशन फ्रॉम द मेंडलिज्म, कि मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने, जो मेंडल ने काम किया वो रिजल्ट्स नहीं आए उनके, तो उसको नॉन मेंडलिज्म हम लोग कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल वर्क है इसमें, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग करेंगे, को डोमिनेंस करेंगे, फिर मल्टीपल अलील्स हैं, इसमें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि ब्लड ग्रुप की ही डेफिनेशन करनी है हमको, एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद फिर प्लियोट्रॉपी है, और एक फिर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पर इसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एलिमेंट्री आइडिया ओनली, मतलब हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है इसको, थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया ही करना है हमें। तो उसके बाद फिर थर्ड हमारा आ जाता है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेंडल के टाइम पे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में मेंडल को कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है हमें डिस्कस, ह्यूमंस में, बर्ड्स में एंड हनी बीज में। उसके बाद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें हमें एग्जांपल्स करनी है, हीमोफीलिया है, देन कलर ब्लाइंडनेस, ये दो हमें एग्जांपल्स इसमें ग्राफ क्रॉसेस बनेंगे। तो देन उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मतलब जो डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन बींग्स में हम लोग देखते हैं, तो बाय बर्थ होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं हम लोग उनको। तो उसमें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, पर हमने थैलेसीमिया करना है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे KLINE, दैट इज के साइलेंट, लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ग्लेनफेल्टर सिंड्रोम में, तो उसके साथ डिजीजेस आती हैं ये, तो ये हमें करना है। ये आपके 5th चैप्टर का सिलेबस है, तो इसको आगे हम करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, इसको आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।